Hello students, this is your faculty Dr. Priya, and the topic of today's lecture is pharmacological action of Coffea cruda. Let's begin. Coffea cruda, as we all know, is a plant kingdom remedy prepared from coffee. The botanical name is Coffea arabica lin, that is Linus, belongs to the family Rubiaceae. The common names are in English coffee, French café, and in German it is known as Kaffee. The habitat or distribution of this plant is, it is a native of Ethiopia, but it is also cultivated in India. History and authority, it was introduced into homeopathy by Staff. It was proved by Staff and Hahnemann both. And it is included in the T.F. Allen's Encyclopedia of Pure Materia Medica, which was published in the year 1874 on page number 435. It is also mentioned in the C. Herring Guiding Symptoms, published in the year 1879, page number 310, and a Dictionary of Practical Materia Medica by G.H. Clark, published in the year 1900 on page number 556. And the part used for preparation of homeopathic medicine is the seeds. Now, description of the plant. Coffea arabica, commonly called as Arabian coffee, it is an upright tropical evergreen shrub or a small tree that grows to 10 to 15 inches tall. So Coffea arabica का common name है Arabian coffee और एक ऐसा plant है, basically एक shrub है जो evergreen होता है या एक small tree की height तक रहता है, which is 10 to 15 inches. Although native to Ethiopia, Arabian coffee has been cultivated in Arabia for over 1,000 years. So native है ये actually plant कहाँ का है? इथियोपिया का है, but इसको अरेबिया में भी 1,000 years से ज़्यादा हो गया है इसको cultivate होते हुए. It is now commercially grown in subtropical and tropical areas throughout the world. So अभी commercially subtropical और tropical areas throughout the world, पूरे world में ही grow करा जा रहा है अभी. Under cultivated condition in India, kept pruned down up to a height of 1.5 meter. The main stem with lateral branches in opposite pairs or in holes. So India में जहाँ पे जब cultivation हो रहा है कॉफी या अरेबिका का, इसकी हाइट को हम यूजुअली 1.5 मीटर्स तक ही प्रून रखते हैं, इससे ज्यादा ग्रो करने नहीं देते. और इसकी मेन स्टेम से लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं जो यूजुअली ऑपोजिट पेयर्स में निकलती हैं. प्लांट के फीचर्स में सबसे पहली चीज है द लीव्स आर ग्लैब्रस, ग्लॉसी, elliptical, dark green leaves with prominent veins and wavy margins. So as you can see in the picture here, glossy leaf है, elliptical shape की है, dark green color है, इसकी veins prominent है, veins you can see, these are the veins, ये सब veins बहुत prominent है, और margins आप देख सकते हो wavy margins है, सारे margins leaves के wavy है. Next is the flower, fragrant, that is resembles the aroma of jasmine, star-shaped white flowers that bloom in axillary clusters of 2 to 9. So इसके जो flowers होते हैं, as you can see in this picture, white flowers होते हैं, and इनकी smell जो होती है वो smell और in fact look भी जो है वो काफी jasmine के flowers की जैसा ही है, और usually ये एक ही जगह पे 2 to 9 के cluster में grow करते हैं. As you can see here, more than 2-3 flowers are there in this picture. Now the fruits, green 2-seeded fruits or berries that gradually mature to yellow, light red and finally deep red. So इसमें 2-seeded fruits होते हैं, berries होती है, basically इसके जो fruits होते हैं वो berries होते हैं, इसके अंदर 2 seeds रहती हैं, जो सबसे पहले yellow green color का होता है, then it becomes yellow, then light red and then finally deep red. और इसके बाग जो होते हैं usually fissured होती है. Berries जो है, जो berries होती हैं ये edible होती हैं with a pulpy grape like texture. grape जैसा texture होता है इन berries का भी, but it is the seeds
that are coveted. So हम जो basically medicine बनाते हैं वो इन berries के अंदर जो double seeds होती हैं, dual seeds होती हैं, उनसे बनाते हैं. Berries are picked up by hand when ripe and depulped with the extracted seeds, beans, then dried in the sun before roasting. So सबसे पहले berries को hand से pick किया जाता है, जब वो ripe होती हैं तब, और उनको depulp किया जाता है, मतलब उनका pulp अलग से निकाल दिया जाता है, और beans या seeds को हम पहले sun में dry करते हैं, फिर उनको roast करते हैं. ऐसे this is the process of how coffee is made. तो जीनस नेम इसका जो आया कॉफी अरेबिका नाम है. तो जो जीनस नेम अरेबिका है, कॉफिया है, वो आया है फ्रॉम द वर्ड कहवा, जिसका मतलब होता है बेवरेज. ये एक अरेबिक वर्ड है, और जो स्पेसिफिक है वो अरेबिया है, क्योंकि अरेबिया से ही मेनली इसका बहुत ज्यादा कल्टीवेशन या मेडिसिनल यूज स्टार्ट हुआ था. सो कॉफी अरेबिका, कहवा एंड ऑफ अरब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लांट used as a medicine. So according to legends, Muhammad was cured of narcolepsy with coffee. There are indications in Arabic medical literature that coffee was used medicinally as early as 10th century. So Arabic medical literature में coffee का use as a medicine is very early, as in 10th century में भी इसका use किया जाता था as medicine. And मोहम्मद जो थे उनको क्योर किया था नार्कोलेप्सी से कॉफी ने. नार्कोलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन को एक्सट्रीम टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि बैठे बैठे भी सो रहा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप इज अ कंडीशन नोन एज नार्कोलेप्सी. उससे ट्रीट हुए थे मोहम्मद विद द यूज ऑफ कॉफी एज अ मेडिसिन. Now, coffee first came to Europe from Arabia in 1600s as a medicine and not as a beverage. So, coffee Europe में आई थी अरब से in 1600s, and it did not come as a beverage, but it came as a medicine. In 17th century, England coffee was regarded as a substance that reduced sexual energies even to the point of impotence. So, 17th century में England में it was observed कि coffee के use से सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल एनर्जीज रिड्यूस हो रही थी, इतने हद तक कि इम्पोर्टेंस भी कॉज कर रही थी कॉफी का यूज. In 1859, the Scottish physician Salter reported strong coffee to be one of the best reputed remedies for asthma, resulting in the common prescription of black mocha coffee for allergic bronchial asthma. So 1859 में Scottish physician थे Mr. Salter. He reputed coffee as one of the best reputed remedies for asthma. So he's remarked कि coffee is one of the best reputed medicines for asthma, और जिसकी वजह से prescription for allergic bronchial asthma was of black mocha coffee. Now coming to the active constituents of this drug. The active constituent is caffeine. You can see the caffeine molecules diagram in here, and the composition is C8H10NO2. Now caffeine is processed or metabolized in the liver by cytochrome P450 oxidase enzyme, and is broken down into 3 metabolic dimethylxanthines. So basically caffeine जब हम intake करते हैं, इसका metabolism या process जो start होता है, it happens in the liver, and basically the cytochrome P450 oxidase जो enzyme होता है, ये act करता है, कैफीन को metabolize करता है liver में, और कैफीन को break down करता है 3 metabolic dimethylxanthines. तो 3 अलग अलग dimethylxanthines में कैफीन को ये break down करता है. तो ये जो dimethylxanthines है उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है paraxanthine, theobromine and theophylline. So paraxanthine, it forms the 84% of the composition of caffeine, and it breaks down fats and increases blood levels of glycerols and fats. Theobromine, it forms 12% of the caffeine, and it dilates the blood vessels and also has a diuretic effect. That is, diuretic effect वो effect होता है, that is increasing the urination. So theobromine basically blood vessels को dilate करता है और diuretic effect show करता है. And theophylline, it forms 4% of caffeine,
and it dilates the airways and is also used in the treatment of asthma. So these metabolites, they are further broken down and excreted in the urine. So ये metabolites further break down होते हैं और फिर urine के through excrete हो जाते हैं. So basic active constituent coffee का is caffeine, or further it is broken down into paraxanthine, theobromine and theophylline. So now, having central stimulant effects, caffeine stimulates the cardiac muscles, relaxes the smooth muscles, in particular bronchial muscles, and increases the flow of urine. So coffee का basically जो effect होता है वो central stimulant effect होता है. Central nervous system पे जाके एक stimulating effect करती है caffeine. It stimulates the cardiac muscles and it relaxes the smooth muscles. Basically bronchial muscles को पे act करती है जहाँ पे जाके उनको relax कर देती है और and it also increases the flow of urine. Okay, so basic काम क्या है? Stimulant effect है. ये nervous system पे जाके इसको stimulate करती है. Caffeine is at first a stimulant and subsequently a paralyzant to nerve centers in the cerebrum, medulla and cord. So कैफीन है जितने भी हमारे नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनमें हमेशा हमें 2 एक्शंस मिलती हैं, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन. सो कैफीन में भी कैफीन सबसे पहले फर्स्टली क्या करता है? स्टिमुलेट की तरह काम करता है, आपको स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम पे जाके, बट सेकेंडरी एक्शन है सब्सिक्वेंटली ये फिर नर्वस सिस्टम को पैरालाइज भी करता है. सो दीज आर 2 ऑपोजिट एक्शंस यूजुअली सीन इन दी ऑल नार्कोटिक ड्रग्स. Now in small doses, अगर कैफीन का हम इंटेक स्मॉल डोजेस में करते हैं, it quickens the action of heart and raises the arterial tension. It stimulates the cerebral functions by increasing the supply to the brain. It increases the respiration rate and the secretion of urine. So primary action होगा अगर हम small doses में लेंगे कैफीन को, तो basically क्या करता है? Action of heart बढ़ा देता है, arterial tension बढ़ा देता है, सेरेब्रल फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है वो क्या होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड टू द ब्रेन, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन भी बढ़ जाता है. सो जो हम लोग कॉफी को पीने के बाद एक स्टिमुलेंट इफेक्ट, एक जो अवेकनिंग इफेक्ट फील करते हैं वो इसीलिए फील करते हैं क्योंकि कैफीन का बेसिक एक्शन जो होता है, फर्स्ट एक्शन है, प्राइमरी एक्शन जो होता है वो स्टिमुलेंट का होता है. यूजुअली जब आप स्लीपी फील कर रहे होते हैं या बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं एंड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड देन यू कैन अगेन गेट बैक टू वर्क बिकॉज आप वहां पे अवेकन फील करते हो और वहां पे फ्रेश या रिफ्रेश्ड फील करते हो. व्हाई? बिकॉज इसका जो एक्शन स्टिमुलेंट एक्शन है ये हार्ट के एक्शन को बढ़ा देता है, सेरेब्रल फंक्शंस को बढ़ा देता है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है ब्रेन में बेसिकली. सो नाउ आपका जो ब्रेन पहले एग्जॉस्ट हो गया था, जो एक स्लीपी मोड में जा रहा था, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ गया तो अगेन स्टिमुलेट हो गया ब्रेन. साथ ही में रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाती है स्मॉल डोजेस में कैफीन. कैफीन जो है it is excreted unchanged in the bile and urine. It is a reliable hydrogog diuretic acting by stimulating the secreting apparatus in the kidney as well as by generally raising the arterial tension. So basically जो इसका जो diuretic effect है या जो secretion of urine को ये बढ़ाती है वो basically क्यों है? Because it stimulates the secreting apparatus in the kidney और basically side by side arterial tension यानी blood pressure को भी बढ़ाती है. So simultaneous effect of the increased blood pressure and stimulating effect on the secreting apparatus in the kidney की वजह से ही इसका जो इफेक्ट है वो डायूरेटिक इफेक्ट भी है. कैफीन इट ऑल्सो इनहिबिट्स वेसोप्रेसिन. सो वेसोप्रेसिन भी इनहिबिट करती है जिसकी वजह से भी ये पावरफुल डायूरेटिक की तरह काम करती है. And metabolism liver में होता है, which I have already told you. It increases the levels of cyclical AMP and decreases level of branch change and aromatic amino acids in the plasma. Moderate doses में अगर हम कैफीन का इंटेक करते हैं, so we often overstimulate the cerebral circulation, causing thereby great heaviness of the head, flashes of light before the eyes, tinnitus aurum, insomnia, restlessness, and even delirium. So अगर मॉडरेट डोजेस में भी हमने कॉफी का इंटेक करा है या कैफीन का इंटेक हमने मॉडरेट डोजेस में या रेगुलर इंटेक किया है, सो इसकी वजह से क्या होता है? सेरेब्रल सर्कुलेशन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है.
सो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेरेब्रल सर्कुलेशन, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से हैवीनेस ऑफ द हेड जैसी फीलिंग हो सकती है, आईज के आगे लाइट आ रही है ऐसी फीलिंग हो सकती है, टिनिटस ऑरिया मींस सम नॉइसेस इन द ईयर फील हो सकते हैं, इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस फील हो सकता है, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है और इवन डेलीरियम भी फील हो सकता है। साथ ही साथ द पल्स बिकम्स रैपिड, फीबल, irregular and intermittent and the general body temperature elevated. So एक बॉडी का जनरल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और पल्स भी रैपिड और फीबल हो जाती है along with these because of the over stimulation of the cerebral circulation after moderate doses of caffeine. And अगर हम large doses of caffeine लेते हैं then what happens? Large doses depress the heart and respiration, lower the blood pressure, and in lethal doses paralyzes the cardiac muscle as well as its motor ganglia, but causing death by paralysis of respiration. So large doses में basically action heart पे है और respiration पे है. So heart और respiration भी depress हो जाते हैं, low हो जा मतलब उनकी activity कम हो जाती है, blood pressure low हो जाता है, और अगर lethal doses में आपने लिया है तो cardiac muscles पैरालाइज हो जाएंगे और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन की वजह से डेथ हो सकती है इफ इट इज टेकन इन लीथल डोजेस. नाउ वही जो मैंने बताया था, नाउ इट्स टाइम टू लेट्स सैग्रीगेट कि प्राइमरी एक्शन क्या है और सेकेंडरी एक्शन क्या है. सो प्राइमरी एक्शन ऑफ कैफीन वही है स्टिमुलेंट. इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट दैट रिड्यूसेस फैटीग एंड ड्राउजीनेस. सो अगर आप कैफीन को ले रहे हो इन स्मॉल क्वांटिटीज इन स्मॉलर डोज, ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से आपकी थकान और जो नींद की अवस्था है, ड्राउजीनेस है, फैटीग है, उसको ये कम करता है. इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ फैटीग लीडिंग टू इंसोम्निया एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड अ क्लियर फ्लो ऑफ थॉट. सो वही है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हो, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो और आप एक कप कॉफी पी लेते हो, यू आर अगेन बैक टू वर्क बिकॉज एक जो फीलिंग ऑफ फैटीग है वो कम कर देती है कैफीन. इंसोम्निया मतलब कि बहुत नींद आ रही है और आपने कॉफी ले ली है तो आपकी नींद जा सकती है एंड यू कैन गेट बैक टू योर वर्क. इट इंप्रूव्स दिस कंसंट्रेशन एंड अ क्लियर फ्लो ऑफ थॉट. Now the methyl xanthines जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, especially the theophylline and caffeine, they produce less locomotor stimulation. So locomotor stimulation कम produce करते as compared to other narcotic drugs. से अगर हम कैफीन को कंपेयर करें तो locomotor stimulation मतलब hands और legs में कोई बहुत इफेक्ट नहीं करती methyl xanthines, and they do not even induce euphoria या stereotype behavioral patterns या psychotic state नहीं प्रोड्यूस करती है मिथाइल xanthines या थियोफाइलिन और कैफीन. मतलब जैसे कि हमने कैनबिस के टाइम में भी पढ़ा था कि यूजुअली पेशेंट एक हाई स्टेट में होता है, ठीक है, या कैनबिस इंडिका में आपने पढ़ा होगा एक लो स्टेट में होता है. जो एक यूफोरिया की स्टेट होती है, एक फॉल्स स्टेट जो माइंड में क्रिएट हो जाती है कि आई एम बिग या आई एम दी ओनली वन. जो एक जो हैप्पी है, एक्सट्रीमली हैप्पी फीलिंग जो होती है, ये इन सब फीलिंग्स को हम एक यूफोरिया कहते हैं, साइकोटिक स्टेट कहते हैं. तो ऐसी कंडीशंस प्राइमरी एक्शन या सेकेंडरी एक्शन ऑफ कैफीन में नहीं होती. दो कैफीन इज अ नार्कोटिक ड्रग, बट ये इस टाइप के रिएक्शंस को या इस टाइप के स्टिमुलेशंस को प्रोड्यूस नहीं करता है. इसका बेसिकली एक्शन नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की जैसा होता है और ये बेसिकली आपके फैटीग को और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फैटीग को कम करता है. दैट्स इट. एट नॉर्मल डोजेस caffeine has variable effects on learning and memory, but it generally improves reaction time, wakefulness, concentration, and motor coordination. I think everyone might have observed this once in their life कि कैफीन या कॉफी के इंटेक के बाद हाउ इट फील्स. अगर आप कॉफी लेते हो, if you are tired, उसका बेसिक इफेक्ट यही होता है, इट इम्प्रूव्स द रिएक्शन टाइम, वेकफुलनेस मतलब आप अवेकन फील करोगे, आपका कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा, आपका मोटर कोऑर्डिनेशन better हो जाता है after the intake of coffee in small doses. So this is the primary action of caffeine. Now let's move to the secondary action. Secondary action इसको just opposite होगा. So primary action में अगर आप awakened feel कर रहे हो, secondary action में आप sleepy feel करोगे, dizziness feel करोगे, diarrhea हो सकता है, increased thirst हो सकती है,
डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर है, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स हमने इसके सेकेंडरी एक्शन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसके जो लार्जर डोजेस वाले या जो हमने टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स पढ़े वो ही आएंगे सेकेंडरी एक्शन में। सो एंजाइटी एंड अदर नर्वस सिस्टम इश्यूज, increased accelerated heartbeat, confusion, trouble breathing or difficulty in breathing, vomiting, hallucinations, confusion, chest pain, irregular or fast heartbeat, uncontrolled muscle movements and convulsions. These are all secondary actions of caffeine or coffee. Now the medicinal uses. Medicinal uses में first important use of coffee generally is in cases of insomnia. Insomnia का मतलब होता है difficulty to sleep या sleep disorder where the person is not able to sleep. So coffee state is brought on by emotions or violent excitement of the mind, but especially by joy or pleasant surprise. So coffee का state जो है वो basically इमोशंस की वजह से, कॉफी की इंसोम्निया जो है, जो स्लीपिंग प्रॉब्लम हो गई है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, वो मेनली इमोशंस की वजह से होता है या फिर वॉलेंट एक्साइटमेंट ऑफ द माइंड, बट इट इज मेनली बाय जॉय या प्लेजेंट सरप्राइज। किसी हैप्पी न्यूज की वजह से, किसी प्लेजेंट सरप्राइज की वजह से, बहुत ज्यादा खुशी की वजह से, खुश होने की वजह से अगर किसी पर्सन में इंसोम्निया हो रहा है, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, उन केसेस में कॉफी वर्क्स वेरी नाइसली। वॉलेंट एक्साइटमेंट ऑफ द माइंड हो गया है, द पर्सन हैज, उसका माइंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है एक हैप्पी न्यूज सुनने के बाद। सो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज स्लीपलेसनेस, नर्वस एक्साइटमेंट, न्यूरैल्जिया, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, टूथेक, रेड फेस एंड हॉट हेड। सो स्लीपलेसनेस है पेशेंट में, नर्वस एक्साइटमेंट है, न्यूरैल्जिया मतलब नर्व पेन भी हो सकता है, मसल्स में ट्विचिंग फील हो सकती है, टूथेक हो सकता है अलॉन्ग विद दैट, रेड फेस एंड हॉट हेड। ये सारे सिम्टम्स हैं। और किसी वॉलेंट एक्साइटमेंट ऑफ द माइंड या किसी प्लेजेंट सरप्राइज या गुड न्यूज की वजह से अगर इंसोम्निया है, देन कॉफी वर्क्स वेरी नाइसली। स्लीपलेसनेस फ्रॉम ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, स्लीपलेसनेस ऑफ लाइंग इन वुमेन। लाइंग इन वुमेन मतलब डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम को हम लाइंग इन भी कहते हैं। सो उस टाइम पे अगर फीमेल suffers from sleeplessness because of the over excitability of mind and body, there you can also think of coffee. The patient wakes with a start, the sleep is disturbed by dreams. इधर स्टार्ट, अगर नींद आ भी गई है तो वो बीच में अचानक से जग जाएगा बार बार, और यूजुअली ड्रीम्स की वजह से जग जाएगा। और अगर स्लीपलेस है तो स्लीपलेसनेस ज्यादातर क्यों होगा? इट इज ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, फ्लो ऑफ आइडियाज विद नर्वस एक्साइटेबिलिटी। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपका माइंड किसी चीज के बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहे हैं आपके माइंड में, सो उसकी वजह से भी आप स्लीपलेस हो सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिलेटेड है टू अ हैप्पी न्यूज, टू अ गुड न्यूज, टू अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली अगर किसी पेशेंट में आपको मिल रहे हैं एंड इट्स अ केस ऑफ इंसोम्निया और स्लीपलेसनेस, कॉफी कैन डू अ गुड हेल्प। Now toothache के केस में भी कॉफी as a medicine is used very much, but toothache is better from holding ice cold water in the mouth. So थोड़ा सा यहाँ पे जो toothache में जो कॉफी का एक्शन है, that is very much significant and we can remember it very nicely कि ice cold water मतलब इतना ठंडा पानी की जिसका टेम्परेचर आइस जैसा हो, उसको मुंह में रखने से अगर दांत का दर्द बेटर हो रहा है तो वहां पे आपको कॉफिया देनी है। इन्फ्लेम्ड कंडीशंस ऑफ गम है, गम में इन्फ्लेमेशन है, पेन इन द टीथ है, दांत में दर्द है, रेंडिंग टियरिंग पेन इन द टीथ, टियरिंग, दांत में टियरिंग पेन है, इट इज ब्रॉट ऑन फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, फ्रॉम इमोशंस, फ्रॉम एक्साइटमेंट, फ्रॉम जॉय, aggravated from motion, ameliorated by ice or ice cold things, and aggravated by warm food. कि अगर दांत का दर्द है वो यूजुअली या तो ठंड लगने की वजह से बढ़ गया है,
इमोशंस की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, बहुत ज्यादा खुशी की वजह से या मोशन की वजह से बढ़ गया है, वार्म ड्रिंक्स पीने की वजह से बढ़ गया है, और आइस या आइस कोल्ड थिंग्स, मतलब आइस खाने से या आइस की वाले टेम्परेचर वाली चीजें को पीने से या खाने से अगर टूथेक बेटर हो रहा है, देन कॉफी इज द मेडिसिन. Cannot drink warm tea, it so intensifies the pain. So वही, it is aggravated from warm drinks. warm tea patient नहीं पी सकता, दांत का दर्द गर्म चाय पीने से बढ़ रहा है, then coffee is the medicine. Next is headache. Headache which is worse from noise, smell या open air. बहुत significant इसका headache है कि बहुत ज्यादा आवाज होने से, बहुत ज्यादा स्मेल की वजह से या ओपन एयर में जाके अगर किसी पर्सन का हेडेक बढ़ रहा है या हो रहा है, तो आप कॉफिया दो, इट विल वर्क वेरी नाइसली. पेन्स इन द हेड एज इफ ब्रेन्स वर ब्रूस्ड, एज इफ द ब्रेन वर टॉर्न और डॉश्ड टू पीसेस. सो ऐसा दर्द, हेडेक होता है, ऐसा दर्द होता है हेड में पेशेंट को कि उसको ऐसा लगता है उसका ब्रेन में चोट लगी, उसके दिमाग में चोट लगी. ऐसा उसको फीलिंग होगा कि उसका ब्रेन जो है वो बैश्ड हो गया, टॉर्न हो गया, उसका दिमाग फट गया इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में फट गया. सेमी लैटरल हेडेक एज इफ द नेल वर ड्रिवन इनटू द parietal bone. So one sided headache या semi lateral headache जो माइग्रेन की केसेस में होता है यूजुअली, और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि कोई नेल मतलब आप समझ रहे हो, नेल जो फीलिंग ऐसी हो रही है कि कोई चीज ग्रिल कर रहा है पैराइटल बोन में, ऐसा पेन. हेवीनेस ऑफ द हेड, सेंसिटिव हियरिंग, हेवीनेस फील हो रही है हेड में. सेंसिटिव हियरिंग मतलब छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी नॉइसेस भी उसको इरिटेट कर रही हैं, छोटी छोटी आवाजें भी पेशेंट को बहुत सेंसिटिव कर दे रही है. ब्रेन फील्स लूज, सेंसेशन ऑफ ब्रेन फॉलिंग फॉरवर्ड, सेंसेशन ऑफ हेड बबलिंग, बॉइलिंग सेंसेशन, कंजेशन इन द हेड स्पेशली व्हेन स्पीकिंग, और आफ्टर अ प्लेजेंट सरप्राइज. प्लेजेंट सरप्राइज की वजह से या बात करने की वजह से पेशेंट कंजेशन फील हो रहा है हेड में, हेड की बबलिंग सेंसेशन हो रही है, बॉइलिंग सेंसेशन हो रही है. इस टाइप के जो हेडेक्स हैं वहां पे आप कॉफिया दे सकते हो, इट विल वर्क नाइसली. गैस्ट्राइटिस के केस में सेंसेशन ऑफ इमॉडरेट हंगर विद रैपिड हरीड ईटिंग. सो ऐसा सेंसेशन कि बहुत भूख लगी है, और बहुत भूख लगी है तो पेशेंट जल्दी जल्दी रैपिडली और हरीड ईटिंग करेगा गैस्ट्राइटिस के केस में. उसके बाद बिलियस वॉमिटिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं स्टमक में, क्रैम्प्स विद प्रेसिव या शूटिंग पेन्स, एंजाइटी एंड ऑपरेशन इन द रीजन ऑफ एपिगैस्ट्रम, एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको एंजाइटी फील हो सकती है. कॉलिक यानी कि पेट का दर्द हो सकता है, एज इफ द स्टमक हैज बीन ओवरलोडेड, एज इफ द एब्डोमेन वुड बर्स्ट, कैनॉट सफर द क्लोथ्स टू बी टाइट ऑन द एब्डोमेन. सो एक कॉलिक के टाइम पे या एक स्टमक पेन के टाइम पे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि स्टमक ओवरलोड हो गया, ऐसा फील होता है कि उसका एब्डोमेन फट जाएगा, और वो टाइट क्लोथिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता ऑन द एब्डोमिनल एरिया. प्रेशर इन द एब्डोमेन एज फ्रॉम इनकैर्सरेटेड फ्लैचुलेंस. सो एब्डोमेन में बहुत ज्यादा प्रेशर या हेवीनेस फील होती है पर्सन को, बिकॉज फ्लैचुलेंस या गैस जो है वो कहीं पे फंस गई है, एंड इट इज नॉट बीन एबल टू बी पास आउट. एंड फीसेस विल बी सॉफ्ट विद फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन. सो बार बार पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ सकता है, और जो फीसेस की कंसिस्टेंसी होगी वो सॉफ्ट होगी. सो गैस्ट्राइटिस के केस में ये सारे सिम्टम्स कॉफिया में मिलते हैं कि पेशेंट को फीलिंग हुई कि बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो जल्दी जल्दी रैपिड और हरीड ईटिंग कर लेगा. हरीड ईटिंग की वजह से स्टमक में ओवरलोडिंग फीलिंग हो सकती है, एज इफ द एब्डोमेन वुड बर्स्ट, ऐसी फीलिंग हो सकती है. प्रेशर हो सकता है, और इतना ज्यादा प्रेशर या हैवीनेस हो सकती है कि वो एब्डोमेन के आसपास क्लोथ्स को भी, टाइट क्लोथिंग्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. एंड एस्थमा के केस में हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा कि कॉफी को बहुत अच्छे से यूज किया गया था फॉर टू ट्रीट एलर्जिक एस्थमास. तो एस्थमा के केस में इन केस ऑफ कॉफी
जनरल सिम्टम्स ही है कि शॉर्ट जर्किंग ड्राई कफ है, अगर इरिटेशन ऑफ द लैरिंग्स है, ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट है, पेशेंट इज ऑब्लाइज्ड टू टेक शॉर्ट इंस्पिरेशंस, नाइट कफ है, फिट्स ऑफ सफोकेशन है। तो एक जनरल एस्थमा के केस में अगर बाकी चीजें हमारी मैच हो रही है, बाकी के सिम्टम्स अगर हमें पेशेंट में मिल रहे हैं और एस्थमा भी है उसको, या एलर्जिक एस्थमा है, उन केसेस में भी कॉफी वर्क्स वेरी नाइसली. So this is all about the pharmacological action and the medicinal uses of Coffea cruda. Thank you so much for listening. Stay home, stay safe, stay happy.